occurs from days 1 to 5. Proliferative is from day 6 to 14. So that coincides with the follicular phase of the ovarian cycle. The secretory phase coincides with the luteal phase. If you recall, that's from day 15 to day 28 of the ovarian cycle. The diagram in the center here is showing you how the endometrium changes thickness. It starts off fairly thick and then gets fairly thin and then it starts getting thicker and thicker and thicker and then eventually it'll get thinner. Now what we need to do is discuss the details of the uterine cycle. So the first phase of the uterine cycle is the menstrual phase. So this occurs when your estrogen and progesterone levels are declining because the corpus luteum degenerated. Remember, there is no fertilization. No fertilization means the corpus luteum degenerates. Therefore, there's no production of estrogen or progesterone. So the menstrual phase does correspond to the period of menstruation. So during menstruation, you have decreased blood delivery to the endometrium. So if there's less blood being delivered to the endometrium, the tissue dies and it sloughs into the vagina. So that's what causes menstrual flow. At the end of menstruation, now the second part of the uterine cycle occurs, which is called the proliferative. So what the uterus is doing is it's preparing for the fertilized ovum in case it's fertilized. So to prepare, the endometrium lining has to develop. The layer grows, the glands get bigger, the smooth muscle gets thicker, and the cervical glands are secreting mucus. The development of the lining and the things that are occurring here is caused by the increased estrogen levels. The next phase then is the secretory phase, and it's going to begin as the endometrium is preparing for implantation. So it prepares for implantation by doing the following. And by implantation, what we mean is we're implanting the zygotes, right, the fertilized egg in the wall of the uterus. The secretory phase then, you have an increase in blood supply. There's enlarged glands that secrete glycogen. Why would you want glycogen there? Think about that. Cervical secretions that form a plug, okay, and that's due to progesterone levels going up. Now, let's say fertilization doesn't happen now. So the body's prepared for it, but let's say it doesn't happen. So if fertilization does not occur, the corpus luteum degenerates, and the follicular phase begins all over again the next month. तो इसमें आपने ये समझा कि किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। oogenesis में किस तरीके से ओवम बनता है, that you will understand. मैम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पैराग्राफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, एक बार ग्राफ में जो दिया हुआ है ये इसके साथ समझाना एनसीईआरटी के साथ। पहले इसको देख लो क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, आपका जो oogenesis है उससे रिलेटेड है, तो इसको समझ लो पहले, फिर समझाऊंगी पैराग्राफ। मुझे शेयर कर देना वो पैराग्राफ व्हाट्सएप पे, पहले इसको समझो। The primordial follicle becomes a primary follicle as the granulosa cells become enlarged and cuboidal. The primary follicle enlarges and the granulosa cells form one layer. The zona pellucida forms around the oocyte. The structure is called a secondary follicle when fluid-filled vesicles develop among the granulosa cell. So primary follicle पहले secondary follicle बना जब granulosa cells बहुत सारे उसके एग के चारों तरफ हो गए, और फिर उसके अंदर जब एक कैविटी बनने लग गई, फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी एंट्रम, तो वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। And a well-developed capsule or theca becomes apparent around the granulosa cells. The theca possesses internal and external layers. The structure is called a mature follicle when the fluid-filled vesicles form a single antrum. At full maturity, जब एंट्रम बन जाता है
कहीं कहीं पे फ्लूइड कैविटी एक साथ जुड़कर एक बड़ी सी कैविटी बना लेती है एंट्रम, तो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है फॉलिकल। The oocyte is located in the cumulus mass. During ovulation, the oocyte is released from the follicle, along with some surrounding granulosous cells of the cumulus mass, तो क्यूमुलस मास का called the corona radiata. क्यूमुलस मास के थोड़े बहुत सेल्स उस oocyte के चारों तरफ रहते हैं, उन्हें कोरोना रेडियाटा कहते हैं। इस फॉर्म में 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, जब एग रिलीज होता है। Following ovulation, the granulosous cells divide rapidly and enlarge to form the yellow corpus luteum. फिर उसके बाद उसमें जो ग्रैनुलोसस सेल्स बच जाते हैं फॉलिकल में, वो बहुत ज्यादा डिवाइड होकर एक कॉर्पस लूटियम जैसा मास बना लेते हैं, जिसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करना। और ये धीरे धीरे डाई करता है, तब ये इसके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स रिलीज करते करते फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स भी कम हो जाते हैं बाद में। जब तक ये खूब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा होता है, तब तक एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ती रहती है, यानी रेडी हो रहा होता है इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस। When the corpus luteum degenerates, it forms the white corpus albicans. और जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होता है तो उसे कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। ठीक है, और तुम्हारे चैप्टर रिलेटेड नहीं है। एपोमिक्सिस का एक है वीडियो, उसको देखना चाहते हो देख। बट ये तो हट गया जा चैप्टर 1 एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी, तो इसलिए मत देखो, रहने दो। चैप्टर 1 में था ना एपोमिक्सिस तो। ठीक है, अब वो पेज मुझे बता दो जिसमें जो एनसीईआरटी का पेज है जो तुम पूछ रही हो। शेयर किया तुमने मुझसे पेज? भारती शेयर किया है पेज? हाँ जी मैम। है नहीं भारती, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का जो एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन है वो पूछ रही थी, तो मुझे वो पेज शेयर करो कोई बच्चा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसका पेज है जो एनसीईआरटी का, उसे शेयर करो। यहाँ तो है नहीं भारती, तुम में से कोई शेयर करो, गुंजन या निधि। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो डायग्राम के जो एक्सप्लेनेशन वाला पेज है जो। कर दिया मैम, मैम आ रहे होंगे आपके पास। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो को एक और बार देख। Let's look at the uterine cycle. Remember, we have two cycles, the ovarian cycle and the uterine cycle. The uterine cycle occurs in concert with the ovarian cycle. So I introduced you to the phases of the uterine cycle earlier. Recall that they are the menstrual phase, the proliferative phase, and the secretory phase. In the three phases, the menstrual phase occurs from days 1 to 5. Proliferative is from day 6 to day 14. So that coincides
with the follicular phase of the ovarian cycle. The secretory phase coincides with the luteal phase. If you recall, that's from day 15 to day 28 of the ovarian cycle. The diagram in the center here is showing you how the endometrium changes thickness. It starts off fairly thick and then gets fairly thin, and then it starts getting thicker and thicker and thicker, and then eventually it'll get thinner. Now what we need to do is discuss the details of the uterine cycle. So the first phase of the uterine cycle is the menstrual phase. So this occurs when your estrogen and progesterone levels are declining because the corpus luteum degenerated. Remember, there is no fertilization. No fertilization means the corpus luteum degenerates. Therefore, there's no production of estrogen or progesterone. So the menstrual phase does correspond to the period. वीडियो तो शो ही नहीं हो रही है। But during menstruation, you have Okay. decreased. तुम्हें कौन सा मुझे बताओ कि तुमको कौन सा डाउट है? गुंजन, तुमको डाउट है इस वाले में? हाँ जी मैम, मुझे मैम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैम मुझे जो इवेंट है ना इसके अलग अलग वो समझने हैं। अच्छा, तो पूरी इसमें साइकिल समझनी है। अभी मैं समझाती हूँ उसको, समझते हूँ। मैं उसको अपने ईमेल पे ले लिया है तुम्हारी इमेज को। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें फेजेस दिए हुए हैं। तो फेजेस दोनों के हो रहे हैं। एक तो ओवेरियन साइकिल के फेजेस चल रहे हैं और एक यूटेराइन साइकिल के फेजेस चल रहे हैं, ठीक है। तो यूटेराइन साइकिल के जो फेजेस चल रहे हैं वो आपके होते हैं यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट 1 से लेकर 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन दिखा रखा है। तो यानी कि 1 से 5 दिन तक पहले फर्स्ट डे से ही मेंस्ट्रुएशन काउंट होता है, जब से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद 6 से लेकर आपके 14th डे, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन क्या होता है, वहां पर फॉलिकुलर फेज, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, बिकॉज उसको वहां पर फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है। अभी आके ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आपको दिख रहा है कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहा है। प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी से मैच्योर फॉलिकल बन रहा है, और मैच्योर फॉलिकल में 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट 10 डेज का जो गैप होता है 5 से 14th डे, तो ये जो होता है पीरियड, ये 7 to 8 डेज का बोल सकते हैं, ये फॉलिकुलर फेज होता है। 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। अब 15th डे से स्टार्ट होता है और 27th या 28th डे तक जो फेज चलता है फॉलिकुलर फेज के बाद, उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। क्योंकि इसीलिए ल्यूटियल फेज कहते हैं बिकॉज जो एक बार ओव्यूलेशन से एग रिलीज हो गया, उसके बाद जो बचा होता है वो होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो ग्रैनुलोसा सेल्स का बहुत बड़ा वो होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स का एक मास होता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे, अभी हमने देखी थी वीडियो, उसमें दिखाया था कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा है, ग्रैनुलोसा सेल का मास है जो प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है। नीचे भी आप देख रहे हो ग्राफ में रेड कलर वाला जो हार्मोन है वो बढ़ रहा है यहाँ पर, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम उसे रिलीज कर रहा होता है। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा दिनों बाद यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में यूट्रस लाइनिंग को मोर थिकन कर देता है, इट थिकन्स द यूट्रस लाइनिंग, ठीक है। तो इसका रीजन है बिकॉज अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो इसी लाइनिंग में आके उसे अटैच होना है, प्लासेंटा यहीं पे बनेगा, और जब एग फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट यहाँ आके अटैच हो जाएगा तभी प्लासेंटा बनके तभी प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एंड देन
उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, अगर आपके नेक्स्ट 10 डेज में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, 27-28 डेज में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो क्या होगा, तो कॉर्पस लूटियम भी डिजेनरेट होना लगेगा। अब वो कॉर्पस लूटियम नहीं रह के कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। कॉर्पस एल्बिकन्स बिल्कुल रिग्रेसिंग होगा। रिग्रेसिंग मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा, वो डेड होने लगेगा। तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरॉन भी कम होने लगेगा, तो रेड लाइन का ग्राफ है जो नीचे जाने लगेगा, ड्रॉप होने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से अब यूट्रस लाइनिंग में वापस से मेंस्ट्रुएशन होने लगेगी। वापस से 29 डे के बाद फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये आपकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, दोबारा से मेंस्ट्रुएशन। और ऊपर जो आपके ओवेरियन इवेंट्स, यहाँ पर ग्राफ के ऊपर भी आपको ओवेरियन इवेंट्स दे रखे हैं, तो वहां पर आपका डेवलपिंग फॉलिकल, तो इसको बोल दिया आपका फॉलिकुलर फेज। जब मैच्योर फॉलिकल हो जाएगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, इसे बोल दिया ओव्यूलेटरी फेज। और देन ल्यूटियल फेज, लास्ट में क्या बोल दिया, लूटियल फेज। ठीक है, तो इसमें ही फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि फॉलिकल प्रोलिफरेट कर रहा होता है, इसमें फॉलिकल से ही रिलेटेड है, प्रोलिफरेट कर रहा होता है, और यूट्रस लाइनिंग भी इसके साथ साथ बढ़ रही होती है। और फिर ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज इसलिए कहते हैं बिकॉज ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा सिक्रीट कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, इसलिए ल्यूटियल फेज बोलो या सिक्रेटरी फेज बोलो। देन कॉर्पस ल्यूटियम जब डिग्रेड हो रहा होता है तो वापस से मेंस्ट्रुएशन फेज यानी ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाता है। अब क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, अब तो आया समझ। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि वीडियो में भी यही समझाया था, जो मैंने वीडियोस आपको बताई थी उसमें भी यही बताया था। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या वो है आपकी डाउट? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में भी डाउट है, बोल रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में आपका सिर्फ ये है कि स्पर्म बनते हैं और ओवम बनते हैं, उनकी प्रोसेस है। स्पर्म और ओवम बनने की प्रोसेस आपकी वो स्पर्मेटोजेनेसिस। मैम भारती को है मैम, वो अभी चली गई, उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो जर्मिनल एपिथेलियम रहती है सबसे लास्ट में। गैमेटोजेनेसिस में आते हैं ना मैम ये दोनों, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। गैमेटोजेनेसिस में ही होते हैं। तो मैम इनके तो हम डिफरेंस याद ही कर लेंगे ना। तो इसमें जैसे कि अगर हम बोलें कि ये आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या है कि लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर जो हो गई वो आपकी जर्मिनल एपिथेलियम हो गई। जैसे मैंने अगर ये लेयर बनाई है, दिस इज योर जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और इसके अंदर फिर नए नए सेल्स होते हैं। यहाँ पर एक लाइन से लगे हुए सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम के, यानी टेस्टिस की लेयर है ये। तो टेस्टिस की लेयर के सबसे अंदर यहाँ पर सेल्स होंगे, तो दैट ये तो इसको तो बोल देंगे टेस्टिस की लेयर को ट्यूनिका एल्बिजिनिया। ठीक है, तो TA ट्यूनिका एल्बिजिनिया, तो ये तो आपकी नॉर्मल लेयर है, नॉर्मल एपिथेलियल लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो सेल्स हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स है, मदर सेल्स भी बोल सकते हैं उनको, वो स्पर्म मदर सेल्स हैं आपके। तो ये लेयर से यहाँ स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, स्पर्म मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, स्पर्म मदर SMC बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर
स्पर्म मदर सेल्स के बाद स्पर्मेटोगोनिया भी इनको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आपकी लेयर है, देन उसमें ही मियोसिस होगी। अब इन्हीं सेल्स में मियोसिस हो रही है, तो वो नए सेल्स बन रहे हैं जिनको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो मियोसिस के बाद बने हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं कि उसके अंदर हैप्लॉइड होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देन एक और बार डिवाइड करते हैं, तो दे फॉर्म्स द one sperm mother cell will form two primary spermatocyte, and then two primary spermatocyte will be forming the secondary spermatocyte. तो secondary spermatocyte बनाएंगे, and then secondary spermatocyte will form again meiosis 2. ये फ्लो चार्ट आपको दिया भी हुआ है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देन यहाँ पर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो आपका मियोसिस 1 करता है, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डू मियोसिस 2। यहाँ पे होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की होगी मियोसिस 1, M1। ठीक है, primary spermatocyte will undergo meiosis 1, and then secondary, these are secondary spermatocytes. ठीक है, secondary spermatocytes, secondary spermatocytes, and then secondary spermatocytes ने ये जो 4 cells बनाए, ये चारों cells क्या हो गए, these all 4 cells are called spermatids, 4 spermatids। मेरे पे तो लिखा नहीं जाता है बिकॉज मेरे को आदत नहीं है व्हाइट बोर्ड की, उल्टा सीधा लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको एक तो स्पर्मेटोगोनियम का एक इमेज है, एनसीईआरटी में ही दिया है, तो उसमें आपको दिखाना है, उसमें सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मार्क कर रखे हैं, स्पर्मेटिड्स भी मार्क कर रखे हैं। फिर लास्ट में जो 4 स्पर्मेटिड्स होते हैं वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, मैच्योर होते हैं 4 स्पर्मेटिड्स, किस में मैच्योर हो जाते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स मैच्योर हो जाते हैं आपके स्पर्म्स में, हेड और नेक और टेल वाले स्पर्म में मैच्योर हो जाते हैं। हर एक स्पर्मेटिड 4 स्पर्म्स में मैच्योर हो जाता है, 4 स्पर्म में, जिसके पास एक हेड होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, नेक होती है, ठीक है, और टेल होता है। तो 4 स्पर्म्स फाइनली फॉर्म। तो इस प्रोसेस को, जो 4 स्पर्म्स बनते हैं, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, मैच्योरिंग ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स। तो फाइनली यू विल गेट 4 स्पर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, 4 sperms you will found, and this sperm रिलीज होते हैं फिर वास्ट डिफरेंस में। तो स्पर्म रिलीज जब होते हैं वास्ट डिफरेंस में, उसको एक और नाम बोलते हैं, जब मैच्योर स्पर्म्स बने हुए जो रिलीज होते हैं उन्हें स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये सब है, मैं लिख नहीं पाऊंगी इस पे क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है यहाँ पे लिखने की। ऐसे ही oogenesis में आपको प्राइमरी सेकेंडरी उसमें भी मियोसिस होगा, मियोसिस 1 मियोसिस 2, बट उसमें डिफरेंस ये होता है कि oogenesis में जितने भी प्राइमरी oocyte बनने हैं वो ओवरीज में, बेबी गर्ल जब होती है, गर्ल जब एम्ब्रियो की फॉर्म में या फिर फीटस की फॉर्म में होती है, तभी उसमें बन जाते हैं जितने लाइफ टाइम में उसके जितने भी प्राइमरी oocyte बनने हैं। तो ये डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ओके मैम। और कोई
मैम बस मुझे तो मैम यही पूछना Hi, था। my name is Ashish Parashar. Welcome to अभी आप Language इसको इससे भी इस समझ लेक्चर लो में हम पढ़ेंगे oogenesis। the process of oogenesis. अगर मैं इस टॉपिक की मैम बात अभी करूं फिजिक्स की आज क्लास है। है ये अच्छा, क्वेश्चन है इससे हो आते गया हैं फिजिक्स की क्लास और का एक टाइम? और इम्पोर्टेंट चीज हाँ एक जी मैम, वो तो 20 पे ही आ गया था लिंक। वहाँ पे जो रहते हैं अच्छा, तो एक बार फिगर से चेक कर लो इसको। साइज में थोड़े से बड़े हैं, ये इनकी क्वालिटी है। नेक्स्ट, इन्होंने ही आगे चल हो गया क्योंकि वो जब मियोसिस कर रहा था तो मियोसिस 1 में ही डिप्लोटीन स्टेज पे आया और अरेस्ट हो गया, रुक गया। एक तरह का आपका डोरमेंसी पड़ा था ना, कुछ उसी टाइप का। एग्जांपल ले लो, एकदम सेम नहीं, सिर्फ एग्जांपल ले लो समझ में आने के लिए। यहाँ पे अरेस्ट होने का मतलब समझ लीजिए, ठीक है ना, यानी कि ये यहाँ के रेस्ट करेगा। जैसे टर्टल और रैबिट के रेस में रैबिट सो गया था ना, ये भी सो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब हमारा चाइल्डहुड हुआ खत्म, ठीक है। इसको पूरा ही हटा देते हैं, ये सब पढ़ तो लिया ही है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे आके अरेस्ट हो गया, रुक गया, सो गया, डोरमेंसी पे चला गया, ठीक है ना। तो डिप्लोटीन स्टेज में गया। उसके बाद जब हमारी प्यूबर्टी आई, जब फीमेल ने जो प्यूबर्टी है वो अटेन की, कितने साल पे, 13 से 15। सर एक मैंने फीमेल देखी थी, उसकी तो 12 पे ही आ गई थी। हाँ आ गई होगी, प्यूबर्टी जल्दी आ गई होगी। सर एक फीमेल है, उसकी तो 15 पे आई, बिल्कुल 15 पे आई होगी। कई सारी फीमेल 14 पे होती है, नहीं आती है। तो देखो जब भी प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी में फिर से ये प्राइमरी oocyte जो है वो आगे से डिवाइड होना चालू करेगा। कहाँ से, डिप्लोटीन स्टेज के बाद से। कुछ ऐसा समझ लो कि लाइट चली गई और लाइट दोबारा आ गई, ठीक है। तो अब ये दोबारा से डिवाइड होगा, तो मियोसिस 1 किया, मियोसिस 1 तो किया, लेकिन ये अनइक्वल डिवीजन, ये क्या है, अनइक्वल डिवीजन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अराइज, सर प्राइमरी oocyte मुझे पूरा समझ आ गया, ये रहा ओगोनियम, ये रहा प्राइमरी oocyte, ये रहा आगे का प्राइमरी oocyte। आफ्टर डिप्लोटिंग या आफ्टर बर्थ वो प्यूबर्टी के टाइम पे दोबारा से डिवाइड होना चालू हो गया। लेकिन सर ये प्राइमरी फॉलिकल का क्या लफड़ा है, प्राइमरी फॉलिकल तो मेरे समझ ही नहीं आया और इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो उसका लफड़ा अब समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये बना कैसे, किस तरह से बना। ये प्राइमरी oocyte था ना, ये देखो इन दोनों साइकिल के बीच में लिंक बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों साइकिल एक ही है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte था ये आगे चल के एग बनाने वाला, 100%। नाम पढ़ लो oocyte, नाम अलग ही समझ में आएगा, oocyte। तो ये आगे चल के एग बनाने वाला है, लेकिन इसको जिंदा भी तो रखना है, और इसको जिंदा अगर रखना है तो क्या चाहिए, इसको न्यूट्रिशन। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन, ये खुद को रोटी बनानी आती नहीं है, इसको खुद को खाना बनाना इसको आता नहीं है। तो न्यूट्रिशन देगा कौन, फॉलिकल देंगे। सर व्हाट इज फॉलिकल, फॉलिकल शब्द का मतलब क्या होता है, फॉलिकल शब्द का मतलब होता है ओवरी के सेल। जो ओवरी के अंदर रेसिडेंट सेल पाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पे होंगे ना बहुत सारे सेल, नॉर्मल सेल ओवरी के। तो ओवरी के जितने भी सेल हैं उनको मैंने क्या नाम दे दिया, फॉलिकल्स। नहीं पूरा रहने देते, उनको मैंने क्या नाम दे दिया, उनको मैंने नाम दे दिया फॉलिकल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो प्राइमरी oocyte है इसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो ओवरी के सेल थे, नाम क्या था उनका, फॉलिकल, उन्होंने इसको बाहर से कवर कर लिया। फिर से समझे, प्राइमरी oocyte, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो ओवरी के नॉर्मल सेल थे उन्होंने उसे बाहर से कवर कर लिया। उन्हें हमने टोटल स्ट्रक्चर को क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल। नाउ व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल इज प्राइमरी oocyte प्लस या फिर सराउंडेड बाय, या फिर सराउंड बाय फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल। और फॉलिकल सेल कौन से सेल होते हैं, ओवरी के सेल को हम फॉलिकल सेल बोलते हैं। इनका काम क्या है, न्यूट्रिशन देना, किसको, प्राइमरी oocyte। अब देखो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है ना, लेकिन यहाँ पे चल रहा है। सर क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ के सेल का अगर न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो प्राइमरी फॉलिकल की जगह कौन आ जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर उनका न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा तो कौन आ जाएगा, टर्शियरी फॉलिकल।
फिर उनका भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा तो और सारे सेल आ जाएंगे। देखो इसको और अच्छे से समझो, इसको मिटा देते हैं, इसको और अच्छे से समझो। क्या बोला मैंने ये बोला कि ये रहा आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, कि ये जो प्राइमरी बाद एक और आएगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे, टर्शियरी फॉलिकल। अंदर कौन है, अंदर प्राइमरी oocyte ही है। अंदर कौन है, अंदर प्राइमरी oocyte ही है। अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, प्राइमरी oocyte ही है। बाहर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये कहानी चल रही है। अब कैविटी होगी जिसका नाम होगा एंट्रम। सर हम नहीं मानते, ये देखो ये रही, ये है ना, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है इसी का ही नाम है एंट्रम। दिस इज एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये चीज समझ आई ना। नेक्स्ट जब ओव्यूलेशन होने वाला होगा उसके पहले ये भी आगे डेवलप होगा और मैच्योर फॉलिकल बनाएगा। मैच्योर फॉलिकल का दूसरा नाम है ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल का दूसरा क्या नाम है, ग्रेफियन फॉलिकल। ये फर्क समझ में आ गया, दोनों का रिलेशन समझ में आ गया। और यहां तक ये पूरा सब कुछ प्राइमरी oocyte है। सर क्या तो ये प्राइमरी oocyte है, बोला हाँ। देखो इसको मिटा के दिखाई देता हूं, ठीक है। देखो सर कौन कौन सा प्राइमरी oocyte है, ये वाला भी प्राइमरी oocyte, ये वाला भी प्राइमरी oocyte,